जब मॉक ड्रिल्स होती है तो उस समय ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। द अथॉरिटीज में कंडक्ट सम इवैक्यूएशन। तो जब क्रिकेट मैच होता है या अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन होने से पहले क्या होता है? 4-5 दिन पहले रिहर्सल्स होती है, प्रिपरेशंस होती है, प्रैक्टिस होती है। यस और नो? सो देयर आर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशंस, रिहर्सल्स, रिविजन्स, अगेन रिविजन्स of the particular things. Similarly, in the cricket match, before playing cricket, Virat Kohli or Mahendra Singh Dhoni or Jasprit Bumrah, they do the net practice. वो bowling की practice करते हैं nets में, विराट कोहली बैटिंग की practice करते हैं nets में. Yes. वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने आज 7th of May 2025 को कुछ orders दिए हैं. And what are the orders? Orders are to conduct mock drills in various institutions like schools, colleges, some community centers, etc. Okay? So basically mock drills में हमें करना क्या है? आपके सामने एक वीडियो प्ले किया जाएगा. You have to watch that video. Okay? You have to understand what is being told in the video, and in that video, whatever the information is being shared to you, you have to understand and you have to work upon that. उसके ऊपर काम करना है, उसको execute करना है. ठीक है स्टूडेंट? Firing done by from the Pakistani side on the LOC line of control and on the border. The central government has declared or scheduled a nationwide civil defense drill, which is popularly known as mock drill. You must have seen in the news today, the last 2-3 days, this news is being flashing in the as a breaking news in the media or in the news channels. Mock drill होने वाली है, mock drill होगी. तो basically mock drill होती क्या है? May I know from you? Anybody who knows what is mock drill? Please raise your hand. I want to ask you, mock drill क्या होती है? Yes, I see a half raised hand. Please stand up. Yes, yellow house. Yes, speak. What is mock drill, beta? Please clap. So after the 22nd of April, today is 7th of May, and on 7th of May, today, the central government has announced the boosting of the preparedness level of all the students of various schools in as many as 7 states, including our state, Rajasthan. Students, we are living in Pali and we are studying in Rainbow Public School. We are the students of a very good, big, prestigious and honorary institute. So when these tensions arise on 22nd of April, when the terrorists killed 26 of the tourists, the center has scheduled a nationwide civil defense drill, which is popularly known as mock drill. We welcome Honorable Principal Sir. Please give a huge round of applause. Thank you. ताकि किसी भी घर में एक भी लाइट को नहीं जलाया जा सके. That is called blackout. Okay? Camouflage exercises हो सकती हैं. Critical installments like communication towers, power plants, military areas, they can do camouflage operations. ठीक है? कुछ techniques, कुछ tactics को that situation, you only need to be cautious. Cautious का मतलब सावधान रहे और सतर्क रहना है. ठीक है? कुछ ट्रेनिंग सेशंस होंगी स्कूल्स में, जैसे अभी आपकी स्कूल में शुरुआत हो रही है ट्रेनिंग सेशंस की.
है, समझा सकते हैं वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू कि हमें क्या क्या करना है। What you need to remember, students. What you need to remember, students. We will cut short it and we will try to show the video. हमें क्या क्या याद रखना होगा स्टूडेंट्स? हम सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं भारत देश के, हमें क्या याद रखना होगा? वी हैव टू स्टे काम एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मोबाइल फोन्स चार्ज हो सके, क्योंकि बिजली रहेगी नहीं, तो फोन्स विल बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड शेयरिंग रूमर्स और अनवेरिफाइड न्यूज ऑन सोशल मीडिया। Any particular news which is not authorized by the government of India, which is not verified by the government of India, which is not verified by the administration, you have not to share. You are strictly prohibited to share that news on social media platforms like WhatsApp status or Instagram stories or in the form of reels or even on YouTube or anywhere else on the social media. तो किसी भी तरीके के र्यूमर, अफवाहों को आपको नहीं फैलाना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नहीं अपलोड। गवर्नमेंट चैनल्स को आपको फॉलो करना है और अपडेटेड रहना है। सारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस की कोई पिक्चर्स वायरल नहीं करनी है यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। Now, dear students, kindly pay attention in front of the schools. Thank you. Respond to the way the laws. Blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans, and appliances. Draw the curtains. It awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. India belongs to us. We are playing this video once again. Do watch it carefully. Video please once again. Okay, are you listening? Okay. Vande Mataram. Wow, Jai Hind. सारे अच्छा. Welcome, honorable sir. नमस्ते। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever there is danger to our motherland, country, India, Bharat, then of Lord Vishnu in the form of Krishna. In Sanskrit, Srimad Bhagavad Gita, I remind, yada yada hi dharmasya, whenever there is danger to the glory, religion, art and culture of India, yada yada hi dharmasya, glane bhavati bharata, there is deterioration or enemy attack on India, tadatmanam srajamyaham, then and there God comes in the form, in the human incarnation and fights and fights and fights till the enemies are gone to dust. In the whole speech, whenever I raise my hand, all teachers, all students, they will speak Vande Mataram, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. जय हिंद की सेना, जय 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 हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मेरे साथियों,
ये देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हमारी 26 माताएं और बहनें जिनका सिंदूर मिटा दिया गया आक्रमणकारियों के द्वारा, और ये समय मैं भारत की सेना तीनों जल थल नभ को सैल्यूट, प्रणाम और हृदय से बधाई देता हूं। सबसे पहले उस नाम के लिए जो इस ऑपरेशन को दिया गया। याद है बच्चों, क्या नाम दिया गया इस ऑपरेशन को? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। You must have seen your mother or your married sister applying सिंदूर, माथे की बिंदी और मांग में भरने वाला सिंदूर, क्योंकि भारत माता की बहनों और बेटियों का सिंदूर उन आक्रमणकारियों ने उजाड़ा, तो भारत सरकार जल थल नभ तीनों सेनाओं ने मिलकर एक नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर, जिन्होंने भारत की बेटियों का, भारत की माओं का सिंदूर उजाड़ा है। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो समय आ गया है अब जब क्षमा वीरस्य भूषणम नहीं है, अब आक्रमण वीरस्य भूषणम का समय है। प्यारे बच्चों, मैं गाऊंगा और मेरे साथ आप दोहराएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे भारत की सेना को जोश आएगा। एक एक बच्चा, एक एक साथी मेरे साथ गाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ उठा के, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरों से बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, आई एम डिवोटेड इन योर होली फीट, ओ माई गॉडेस मदरलैंड इंडिया। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे तुझे, बता देंगे तुझे ए आसमां। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछा एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर है लिए हथियार दुश्मन ताक के होली। अगर वतन मुश्किल में है खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला आज हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये पंक्ति गौर से सुने बच्चों और समझें। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन। जहाँ हथेली पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, मक्तल मतलब कत्ल करने की जगह, स्लॉटर हाउस। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें, रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और अंतिम बंद, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून। तूफान से क्या लड़े जो कश्ती साहिल में है। और मेरे साथ अंतिम बार जोर से, सरफरोशी की तमन्ना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। Thank you very much for listening to this patriotic, beautiful song. Cyber expert and security expert. Over to Nilesh ji. स्टाफ को नीलेश का सादर प्रणाम। आज पहली बार मौका मिल रहा है मेरे को रेनबो परिवार को उस तरीके से एड्रेस करने का, तो आपको ये अवसर देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ पहली बार मुझे ये मौका नहीं मिला है कि हम रेनबो के लोगों से, रेनबो परिवार से हम बात कर रहे हैं। आज बहुत कुछ ऐसी पहली बार हो रहा है, बहुत अभूतपूर्व हो रहा है, हिस्टोरिक हो रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। साथियों, कल मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो घटना घटित हुई है, उस घटना का अगर बिल्कुल कम शब्दों में अगर विवरण करना हो तो आप ये समझिए कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने पहली बार नहीं, इस बार तीसरी बार अपनी ताकत दिखाई है। वो सारी ताकत कहाँ से आ रही है? वो सारी ताकत जो है वो भारत के हर नागरिक से, उनके द्वारा पे किए गए एक रुपये के टैक्स से और हमारी दुआओं से उन लोगों को मिल रही है। सर ने आपको काफ़ी चीज़ें तो बता दी होंगी, सवेरे से चल रहा है, आप सब लोगों ने अभी तक तो पढ़ भी लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा, इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल रही होगी। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज का सबसे बड़ी न्यूज़ स्टोरी भी यही है कि इंडिया हैज शोन इट्स पावर। अगर संगठित होकर हमारा भारत देश किसी भी अगर मकसद को पूरा करने के लिए लग जाए तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास आशीर्वाद है, हमारे पास अनुभव है। ये कल रात को जो पाकिस्तान के ऊपर जो मिलिट्री एक्शन हुआ है, बहुत सारे लोग सोचेंगे ठीक है यार, मिलिट्री एक्शन तो होता रहता है, कौन सी नई बात। इजराइल तो रोज़ करता है, अमेरिका की तो आदत है, कहीं ना कहीं जाके वो हमले करते रहता है। तो क्या स्पेशल है इसके अंदर? बिल्कुल स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये समझिए कि ये देश आपका घर है, इस देश में हम मर्जी है जब चाहें जहाँ भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग जिनकी मेरी शादी हुई थी, वो अपने परिवार वालों के साथ में, अपनी पत्नी को लेकर या अपने घर वालों के साथ में, हमारे ही घर का जो हिस्सा है जो कि कश्मीर, वहाँ घूमने गए थे और वहाँ पर उन लोगों का बहुत बुरी तरीके से उनका मर्डर हो गया था। और मर्डर करने वाले पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तानी लोगों को हमेशा लगता था कि भाई इंडिया क्या कर सकता है, एक दो स्ट्राइक कर सकता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, कभी एयर स्ट्राइक कर सकता है, कोई बात नहीं, हम वापस कर देंगे। उन लोगों को ये लग रहा था कि भाई साहब ये लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जिस तरीके से बहुत
साथ में ये डिसीजन लिए और कल रात को जो आतिशबाजी पाकिस्तान में देखने को मिली है उससे आज की डेट में आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि आज आपकी एज है 10 साल, 12 साल, 15 साल। जब आप हमारी एज में आएंगे तब आपको इस चीज़ का शायद अच्छी तरीके से मैं तो पता लगेगा कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, शांति क्या चीज़ होती है। आज आप लोग यहाँ बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स जैसे जैसे मेहनत करके आपको अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के पास एक अच्छी सुविधा है कि आप अच्छे माहौल में बैठकर पढ़ सकें, कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, और हो सके तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, बहुत सारे अच्छे लोगों की, ईमानदार देशभक्त लोगों की, लड़कियों की बहुत ज़रूरत है उनको, क्योंकि सुरक्षा का काम, सिक्योरिटी का काम, डिफेंस का काम एक दिन का नहीं है। तो देश के काम आना है तो सबसे पहले देश की सेनाओं को ही अपना करियर बनाना चाहिए। आप लोगों के पास अभी समय है, मौका है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आप अपनी टीचर्स की मदद ले सकते हैं। आपके पास अभी करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है, और आने वाला समय जो है लड़ाई का जो तरीका है वो भी बदलने वाला है। आज से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले जो लड़ाई होती थी और आज जो युद्ध होते हैं उसमें बहुत फर्क आ गया है। पिछली बार जब भारत का इंडिया के साथ पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह जब 4 बजे सारे लोग, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने अपने इलाकों में अब जो अपनी उनकी कम्युनिटी है वहाँ पर मैसेज फैलाया कि हमने जोधपुर के अंदर मिसाइल अटैक कर दिया है, स्ट्रेंज। और इसको उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना अपनी लोगों से ही झूठ बोल रही है कि हमने जो जोधपुर के अंदर हमने मिसाइल अटैक कर दिया। कहाँ जोधपुर, कहाँ पाकिस्तान, कम से कम 300 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो सूचना युद्ध करना चाहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर मैं किसी व्यक्ति से लड़ नहीं सकता, उसे गोली नहीं मार सकता, उसको हरा नहीं सकता, तो मैं उसको बदनाम करके उसके बारे में गलत बातें फैलाकर उसी युद्ध लड़ने का प्रयास करता हूँ। ये है नए जमाने का वॉरफेयर, उसको हम बोलते हैं IW, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ऐसा है कि ये युद्ध तो चलते रहेंगे, लेकिन अभी युद्ध खत्म, अभी तो शुरुआत हुई है, तो जैसा कि आपने देखा कि कल सरकार ने आज मॉक ड्रिल करने का जो प्लान किया है, उस मॉक ड्रिल के बारे में आप लोगों की भूमिका बहुत सारी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग मॉक ड्रिल में क्या कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजता है तो आपको अपने घरों में ही रहना है। आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स को परेशानी हो, पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस हो, या उनको आप ऐसी कोई मजाक मस्ती में कहीं बाहर निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को आपके घर आना पड़े। तो आपको सायरन बजने की आवाज़ आने पर अपने घरों में ही रहना है। दूसरी बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि भाई इंडियन आर्मी के डिफेंस की कहीं मूवमेंट हो रही है, तो आजकल क्या होता है, सब किसी को रील बनाना है, किसी को वीडियो करना है, किसी को व्हाट्सएप पर वीडियो बना के डालना है। ये सब चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। हमको हमारी आर्मी की या फोर्सेस की कोई भी मूवमेंट होती है, चाहे वो एयरफोर्स की हो या थलसेना की हो, हमको उसका वीडियो जो है रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से हम दुश्मन की मदद कर रहे होते हैं। तीसरी बात, आपको अपने घर पर, अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को भी ये थोड़ा बोलना चाहिए कि भाई आपके घर पे पापा हमने फर्स्ट एड जैसे कह रहे किए कि नहीं किए, भाई बुखार आ जाए तो ऐसी ज़रूरी दवाई हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सर आपको और डिटेल में बताएंगे, और सरकार भी आपको गाइडलाइंस इशू करेगी, उनको हमें पालन करना है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें युद्ध काल में सरकार के लिए समस्या नहीं बनना है, समाधान बनना है। इन द स्टेट ऑफ द वॉर वी शुड ट्राई दैट हम सरकार के लिए एक सोल्यूशन हो, ना कि कोई प्रॉब्लम हो। आप लोगों की और मेरी, हम दोनों की जनरेशन जो है वो युद्ध को फर्स्ट टाइम महसूस करने, देखने वाली है, क्योंकि ना तो हमने वॉर देखी है और आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो। तो इस तरीके के जो अनुभव हैं ये आपको आने वाले भविष्य में बहुत काम आएंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने टीचर से बात करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग आज जो हमारी फोर्सेस के अंदर जो हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जो
कमांडोज हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करें कि हम इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करें, हम इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके तैयार हो जाएं, हम एग्जामिनेशन क्रैक करें और डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस को बहुत लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो सिस्टम है, जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, सिक्योरिटी अपैरेटस है, उसके लिए दिन रात 24 घंटे वो कहीं ना कहीं युद्ध लड़ रहा होता है। तो और बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों के पास में ये सुविधाएं नहीं होती हैं। आप बांग्लादेश में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सीरिया में देखिए कितनी खतरनाक तस्वीरें दिखाई देती हैं। गाजा के अंदर छोटे छोटे 5 साल के बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है। तो हम कितने खुश नसीब, आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी जो है परिस्थिति बनी नहीं है और ना बनेगी, क्योंकि ऐसा होने से पहले ही हमारे पास जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। तो आज हम इस जगह एकत्रित हुए हैं हमारी फोर्सेस को सैल्यूट करने के लिए, लेकिन सैल्यूट करने से बात नहीं बनेगी, हमें आगे की तरफ सोचना है। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि वो अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं और हो सके तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस जरूर ज्वाइन करें। इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, बहुत सारे अच्छे लोगों की, ईमानदार देशभक्त लड़कों की, लड़कियों की बहुत ज़रूरत है उनको, क्योंकि सुरक्षा का काम, सिक्योरिटी का काम, डिफेंस का काम एक दिन का नहीं है। तो देश की काम आना है तो सबसे पहले देश की सेनाओं को ही अपना करियर बनाना चाहिए। आप लोगों के पास अभी समय है, मौका है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आप अपनी टीचर्स की मदद ले सकते हैं। आपके पास अभी करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है और आने वाले समय जो है लड़ाई का जो तरीका है वो भी बदलने वाला है। आज से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले जो लड़ाई होती थी और आज जो युद्ध होते हैं उसमें बहुत फर्क आ गया है। पिछली बार जब भारत का इंडिया के साथ पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह जब 4 बजे सारे लोग, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने अपने इलाकों में जो अपनी उनकी कम्युनिटी है वहाँ पर मैसेज फैलाया कि हमने जोधपुर के अंदर मिसाइल अटैक कर दिया है, स्ट्रेंज। और उसको उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना अपने लोगों से ही झूठ बोल रही है कि हमने जो जोधपुर के अंदर हमने मिसाइल अटैक कर दिया। कहाँ जोधपुर, कहाँ पाकिस्तान, कम से कम 300 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो सूचना युद्ध करना चाहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर मैं किसी व्यक्ति से लड़ नहीं सकता, उसे गोली नहीं मार सकता, उसको हरा नहीं सकता, तो मैं उसको बदनाम करके उसके बारे में गलत बातें फैलाकर उससे युद्ध लड़ने का प्रयास करता हूँ। ये है नए जमाने का वॉरफेयर, उसको हम बोलते हैं IW, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो भाइयों साथियों, ऐसा है कि ये युद्ध तो चलते रहेंगे, लेकिन अभी युद्ध खत्म, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो जैसा कि आपने देखा कि कल सरकार ने आज मॉक ड्रिल करने का जो प्लान किया है, उस मॉक ड्रिल के बारे में आप लोगों की भूमिका बहुत सारी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग मॉक ड्रिल में क्या कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजता है तो आपको अपने घरों में ही रहना है। आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स को परेशानी हो, पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस हो, या खुद को आप ऐसी मजाक मस्ती में कहीं बाहर निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को आपके घर आना पड़े। तो आपको सायरन बजने की आवाज़ आने पर अपने घरों में ही रहना है। दूसरी बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि भाई इंडियन आर्मी के डिफेंस की कहीं मूवमेंट हो रही है, तो आजकल क्या होता है, सब किसी को रील बनाना है, किसी को वीडियो करना है, किसी को व्हाट्सएप पर वीडियो बना के डालना है। ये सब चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। हमको हमारी आर्मी की या फोर्सेस की कोई भी मूवमेंट होती है, चाहे वो एयरफोर्स की हो या थलसेना की हो, हमको उसका वीडियो जो है रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से हम दुश्मन की मदद कर रहे होते हैं। तीसरी बात, आपको अपने घर पर, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स को भी ये थोड़ा बोलना चाहिए कि भाई आपके घर पे पापा हमने फर्स्ट एड जैसी तैयारी की है कि नहीं की है। भाई बुखार आ जाए तो ऐसी ज़रूरी दवाई हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी
छोटी चीज़ें हैं सर आपको और डिटेल में बताएंगे और सरकार भी आपको गाइडलाइंस इशू करेगी, उनको हमें पालन करना है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें युद्ध काल में सरकार के लिए समस्या नहीं बनना है, समाधान बनना है। इन दिस एक सोल्यूशन हो, ना कि कोई प्रॉब्लम हो। आप लोगों की और मेरी, हम दोनों की जनरेशन जो है वो युद्ध को फर्स्ट टाइम महसूस करने देखने वाली है, क्योंकि ना तो हमने वॉर देखी है और आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो। तो इस तरह के जो अनुभव हैं कि आपको आने वाले भविष्य में बहुत काम आएंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने टीचर से बात करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग आज जो हमारी फोर्सेस के अंदर जो हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कमांडोज हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करें कि हम इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करें, हम इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके तैयार हो जाएं, हम एग्जामिनेशन क्रैक करें और डिफेंस फोर्स। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर नीलेश पुरोहित was addressing you, and we are proud that he is many times seen on India TV, NDTV, Aaj Tak, and so many national and international channels for his research on cyber security and all the hacking processes related to intelligence। ऐसी बहुत सी चीज़ें बच्चों जो मैं नहीं बता सकता माइक पर। हमें फक्र है कि पाली में एक ऐसा हीरा है जो इस वक्त शायद पूरी तरह से चमक नहीं रहा है, मगर मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत इस हीरे की कदर करेगा, जानेगा और इसको सर आंखों पे बिठाएगा। झूठ, छल, मजाक, ड्रिल मतलब कोई एक्टिविटी, कोई कार्यवाही जो शायद होने वाली हो, उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। अब तैयार कैसे रहना है? आपने वो छोटा सा एक वीडियो देखा, अभी 2 बार देखा राजीव सर बच्चों ने वो वीडियो, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, अब हम उसको एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा। कोई एक्टिविटी, कोई कार्यवाही जो शायद होने वाली हो, उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। अब तैयार कैसे रहना है? आपने वो छोटा सा एक वीडियो देखा, अभी 2 बार देखा राजीव सर बच्चों ने वो वीडियो, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, अब हम उसको एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वैसे जब भी आक्रमण होता है, whenever there is an attack or assault, कह के नहीं दुश्मन आक्रमण करेगा, मगर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, इसलिए आपको पहले बता रहे हैं। मेरे 1, 2, 3 और 4 कहते ही एक सायरन बजेगा और ये मानना है कि ये वो सायरन भारतीय सेना का है, जिला कलेक्टर का है या किसी आर्मी ऑफिसर या आर्मी व्हीकल का है। वो सायरन की आवाज आते ही 1 रेड हाउस, 1 ग्रीन हाउस, 1 येलो हाउस एंड 1 ब्लू हाउस के जो इंचार्जेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े होंगे और अपने आप को किस प्रकार से आपातकालीन स्थितियों में बचाना है और परिवार को बचाना है, वो एक यहाँ पे एक मॉक ड्रिल होने जा रही है। आप सबको क्या करना है? जॉइन में 4 बोलूं तो वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनको तो आकर के टेबल के नीचे हाइड आउट में यहाँ पे छुपना है और बाकी के जो बच्चे जहाँ हैं वहीं लेट जाना है, बैठना नहीं, वहीं लेट जाना। ओके, ये सब कह के नहीं होगा, ये सब अचानक होगा। आपको हेड डाउन कर लेना है और साइड में हो जाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की अगर आपने ज़्यादा एक्टिविटी की तो नुकसान हो करेगा। मगर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं इसलिए आपको पहले बता रहे हैं। मेरे 1, 2, 3 और 4 कहते ही एक सायरन बजेगा और ये मानना है कि ये वो सायरन भारतीय सेना का है, जिला कलेक्टर का है या किसी आर्मी ऑफिसर या आर्मी व्हीकल का है। वो सायरन की आवाज आते ही 1 रेड हाउस, 1 ग्रीन हाउस, 1 येलो हाउस एंड 1 ब्लू हाउस
के जो इंचार्जेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े होंगे और अपने आप को किस प्रकार से आपातकालीन स्थितियों में बचाना है और परिवार को बचाना है, वो एक यहाँ पे एक मॉक ड्रिल होने जा रही है। आप सबको क्या करना है, जब मैं 4 बोलूं तो वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनको तो आकर के टेबल के नीचे हाइड आउट में यहाँ पे छुपना है, और बाकी के जो बच्चे जहाँ हैं वहीं लेट जाना है, बैठना नहीं, वहीं लेट जाना है। ओके, ये सब कह के नहीं होगा, ये सब अचानक होगा। आपको हेड डाउन कर लेना है और साइड में हो जाना है, क्योंकि मॉक ड्रिल स्टार्ट। रेडी? रेनबो मॉक ड्रिल स्टार्ट्स 1 2 3 4। Attention, relax. Mock drill rainbow starts now. Save our family and we save our country at large. In case of worst case scenario, there will be attack on some targeted areas of Rajasthan also, and Jodhpur is on high red alert because in western Rajasthan it is one of the strongest base for Indian Air Force and Army as well. Of course, बाड़मेर लोगों हमें दे दो थोड़ा सा खाने को आटा और थोड़े से जानवरों का बाटा, क्योंकि एक पागल आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब ले डूबेंगे। ऐसी स्थिति में वो कुछ जगहों का जश्न मनाते हुए भारत के जल थल नभ सैनिकों का बहुत 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 दिल से, आत्मा से, मन से, वचन से और कर्म से हम उनके साथ में। भारत माता की जोश के साथ, होश के साथ, जुनून के साथ, भारत माता की। Singing, dancing, all teachers take care of sport department. Sing along and move. Security expert Mr. Nilesh Purohit was addressing you, and we are proud that he is many times seen on India TV, NDTV, Aaj Tak, and so many national and international channels for his research on cyber security and all the hacking processes related to intelligence
ऐसी बहुत सी चीज़ें बच्चों जो मैं नहीं बता सकता माइक पर। हमें फक्र है कि पाली में एक ऐसा हीरा है जो इस वक्त शायद पूरी तरह से चमक नहीं रहा है, मगर मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत इस हीरे की कदर करेगा, जागेगा और इसको सर आंखों पे बिठाएगा। मेरा बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों।